Good afternoon, everyone. Let's begin with a new anthropological theory, Neo-Evolutionism. And Neo-Evolutionism is the updated form of classical evolutionism, जो आपने पहले एक lecture देखा होगा. Now, classical evolutionism and Neo-Evolutionism दोनों के अंदर जो जो core idea है, it is about cultural evolutionism. Cultural evolutionism, it says that any cultures evolve in progressive stages. ये आप याद रखिए, क्योंकि अगर ये कोर आइडिया आपको समझ में आता है तो फिर क्लासिकल एंड नियो दोनों ही इवोल्यूशनिज्म आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे. सो दोनों का आइडिया यही है कि दैट कल्चर इवॉल्व्स इन प्रोग्रेसिव स्टेजेस एंड द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स इट डिपेंड्स ऑन देयर लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट. सो यानी उस हायरार्की में, उस लैडर में कौन सा कल्चर कहाँ है, इट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their level of cultural development. So that's the core idea. Now, neo-evolutionism, as I said, it is the updated version of classical evolutionism. So classical evolutionism में कुछ कमियां थी, कुछ drawbacks थे, so which were rectified and given a new form. So पहले देख लेते हैं कि उसके postulates क्या है. So classical evolutionism said that cultures evolve in three stages. It starts with the savagery, then go through barbarism, and finally culminate in civilizational stage. Second thing, it talks about unilinear model of evolution, means सारे के सारे जो cultures हैं throughout the world, सब के सब यही trajectory follow करते हैं, from savagery to barbarism to civilization. Then the civilization they talk about, the civilizational apex, the pinnacle, it must resemble the European model. And then they talk about psychic unity of mankind. Psychic unity of mankind. So these were basic postulation of classical evolutionism, but they, face criticism and drawbacks. Most of their ideas were refuted later on because कुछ जरूरी कुछ ग्लेरिंग डिस्फंक्शंस उनमें थे. जैसे ज़्यादातर जो आइडिया जो थे उनके, they were given by armchair anthropologists. So armchair anthropologists means they were not moving in, they did not undertake any fieldwork, any participant observation or any ethnographic by themselves. So उनके जितने भी ideas थे, they were not first hand but the second hand comparisons. And then they did not take into account cultural relativism, and most of the idea they were Eurocentric. So इन सब की वजह से their ideas were refuted later on, और फिर उसके बाद जो different anthropological theories जो हैं, they started getting more attraction. But उसके बाद these anthropologists, Childe, White, Steward, Sahlins, and Service, then they started getting a hold on the idea of evolutionism, because yes, the core idea जो यहाँ पे बताया, that culture evolves in progressive stages, so ये वाला idea जो है, it is still applicable, and this idea cannot be refuted just because a few anthropologists did not take these elements, or their ideas had some drawbacks. So ये जो लोग हैं, उन्होंने वो जो जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनको खत्म किया. First, they emphasize multilinear development instead of unilinear. Then they also bring into account scientific criteria, and उसके अलावा they also cross compare without any Eurocentric bias. फिर किसी stages के बारे में नहीं बताया. They did not advocate for European model of civilization. So इस तरह से ये सब जो drawbacks हटा के they asserted, they provided and forwarded their own version of evolutionism known as Neo-Evolutionism. Now let's start with Gordon Childe. So Gordon Childe, he emphasized that the cultural development है, it depends on technology and economic organization. और ये जो उसका idea है, that culture is the product of technological innovation and economic organization, it sources itself from the ideas of Marxism, the Marxist materialist perspective. Now आगे बढ़ने से पहले, since I also teach political science, so मैं आपको
कार्ल मार्क्स का जो आइडिया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो समझाना चाहूंगा। सो द आइडिया इज सिंपल। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उस हिस्ट्री में वी read about, we study about war, conquest, expeditions, we study about monarchs, rulers, emperors, bloodsheds, pandemics, well, global events हैं या फिर all royal events हैं. We do not read mostly about the individual life, the economic structure, the material structure. So material structure इसलिए important है because अगर सब लोग fight कर रहे हैं, if people are fighting for resources, so the power struggle, the power conflict was there. So that power conflict evoking out of resource acquisition, यहाँ पे resource acquisition तभी होगा जब resources होंगे, और अगर resources हैं then it will have task differentiation, and अगर task differentiation है so there will be task specialization, and task specialization is there then there will be wealth disparity, and wealth disparity is there then there will be social hierarchy, and if social hierarchy will is there then there will be a political organization, a separate specialized task. So इस तरह से ये एक एक लूप है, एक सोशल इकोनॉमिक लूप है। और जो जो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि हम रॉयल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो रिसोर्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो रिसोर्स होने भी तो चाहिए, और अगर रिसोर्सेज हैं तभी तो उनके पास रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि किंग बिना रेवेन्यू के, बिना ट्रेजरी के वो लड़ेगा कैसे, अपने सेना को कैसे वहां पे आगे लेके जाएगा, उसके सोल्जर्स तो उसकी बात क्यों मानेंगे। सो वो रेवेन्यू जो है वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से आ रहा है ना। यहाँ पे एक और चीज है, अगर रेवेन्यू आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अग्रीरियन सोसाइटी है, कि सिर्फ सब लोग जो है वो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ वही है तो भी फिर कॉन्फ्लिक्ट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर हर जगह पे सिर्फ सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो फिर ये खेत इस किंगडम के अंदर है या फिर वो वाला खेत उस दूसरे वाले का खेत है, वो अपने अंदर अक्वायर करना है, दोनों में फर्क क्या है ना। जो ट्रिब्यूट है, ये जो रेवेन्यू है वो तो उतना ही रहेगा, और फिर उसमें पावर का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, है ना। आप पहाड़ों को लेकर तो कोई लड़ाई करता नहीं, रेगिस्तान को लेकर भी कोई नहीं लड़ता, सो क्योंकि वहां पे कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं जिससे वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सके। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है सिर्फ बेसिक नहीं थी, दे वर मल्टीपल टास्क, मैनी एक्टिविटीज, एंड some of those activities they had their own specialization, क्योंकि अगर एक्टिविटीज के अंदर कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा तो कोई उस एक्टिविटी में क्यों जाएगा। जस्ट लाइक ट्रेड, सो ट्रेड के अंदर इंसेंटिव है कि इफ यू एंगेज इन ट्रेड तो उसकी जो बाउंटी है, उसका रिटर्न जो है वो भी काफी अच्छा आता है। देन आप लोगों ने जो मीजोलिथिक के बाद का टाइमलाइन देखा ही है। सो नियोलिथिक के बाद फिर उसके बाद कैलकोलिथिक है। सो नियोलिथिक के अंदर परमानेंट सेटलमेंट आया, डोमेस्टिकेशन, देन कैलकोलिथिक में मेटल एज शुरू हो गई, जो फोर्स इंसेंटिव है वहीं से शुरू हुआ। सो कैलकोलिथिक में मेटल सोसाइटी जो है उसके शुरू होने से ट्रेड भी शुरू हुआ, ट्रेड शुरू होने से वेल्थ डिस्पैरिटी शुरू हुई, फिर कुछ जो लोग हैं जो द वेल्दी पीपल, द ट्रेडर्स, और उनका जो घर है वो काफी अच्छा बनने लग गया, फिर वहां से जो फोर्ट्रेसेस स्टार्ट हुए, पेरीमीटर, रैम्पेट्स, ये सब बनने शुरू हुए, तो वहीं से फिर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो जो सिनेरियो है वो वहीं से शुरू हुआ। सो कुल मिला के यहाँ पे ये टास्क स्पेशलाइजेशन इज the source that fuels economic activities, various economic activities, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तब जाके ट्रेजरी को वो रेवेन्यू मिलेगा, और ट्रेजरी को रेवेन्यू मिलेगा देन दैट्स हाउ इट कैन fight on for itself, for its protection, for its security, and also to acquire resources from outside. So ये पूरी जो कहानी है ये हमें नहीं बताई गई, ये हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते,
द हिस्ट्री ऑफ मटीरियलिज्म, द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, किस तरह से रिसोर्स एक्विजिशन हो रहा था, किस तरह से जो पावर है, पावर के जो सटल मूवमेंट्स हैं, दे वर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो यही आइडिया कार्ल मार्क्स ने लिया, और सिमिलरली यही आइडिया was later taken on by Gordon Childe. And Gordon Childe came up with this ultimate conclusion that social change, और यहाँ पे read it as cultural evolution, it happens through revolution. और उसके हिसाब से Gordon Childe also gave account of different revolutions. यहाँ पे दो revolution बताई गई है. First, the Neolithic revolution, so which he expressed, forwarded in his two of his work, Man Makes Himself and What Happened in History. So इन दोनों में ये बताया है कि around 10,000 years ago, our society, our ancestor, they transitioned from semi-sedentism to permanent settlement. So ये जो change था, this was a revolutionary phase, क्योंकि this phase, it not only marked a transition from Mesolithic to Neolithic lifestyle, but उसके साथ ही we also changed our entire existence. Mesolithic के अंदर सेमी सेडेंटिक लाइफस्टाइल थी, और है ना, नोमैडिक लाइफ थी, कहीं पे एक परमानेंट सेटलमेंट कहीं पे नहीं था, और उसके अलावा फॉरेजिंग, एक्सप्लोरेशन, स्मॉल गेम हंटिंग, ये सब चल रहे थे. But Neolithic provided us a station to rest and to free our hands and our mind for other occupations. So एक तरह से वो बेसिक आइडिया नहीं था, उस वजह से परमानेंट सेटलमेंट नहीं आया. बट ये है कि मिजोलिथिक के अंदर सेमी-सेडेंटिज्म वैसी था. धीरे धीरे लोगों को समझ में आया है कि यस, वी कैन स्टे एट वन प्लेस इफ वी लर्न डोमेस्टिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों के साथ ही आवर द प्राइमरी नीड्स, जैसे जो सर्वाइवल है, फूड है, द सिक्योरिटी है, रिप्रोडक्शन है, एंड न्यूट्रिशन है, ऑल ऑफ देम दे कैन बी एंश्योर्ड बाय हैविंग अ स्टेशन. और उसके साथ फिर उनको डोमेस्टिकेशन तो मेसोलिथिक से शुरू हो ही गया था. सो अब इस स्टेशनरी लाइफस्टाइल के साथ ही जो सर्वाइवल है वो इंश्योर हो गई. ये जो पांचों चीजें जो है दे वर इंश्योर्ड, और उनके इंश्योर होने की वजह से नाउ आवर माइंड्स एंड हैंड्स दे वर फ्रीड. सो फर्स्ट पॉपुलेशन एक्सपेंशन शुरू होगा, और पॉपुलेशन एक्सपेंशन के साथ ही जो ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, जो यहाँ पे गॉर्डन चाइल्ड ने भी नहीं बताई, कि व्हेन हैंड्स एंड माइंड्स वर फ्रीड, क्योंकि अब जो है ग्रीन जो स्टेशनरी लाइफस्टाइल है, उसमें सबको उस काम में एंगेज होने की जरूरत नहीं है. अब हमारे पास बहुत कुछ बच गया है ना. और वही चीज जो है, वही पोटेंशियल, इट कैन बी जनरलाइज टू अदर ऑक्यूपेशंस. और वही उसी के साथ ही ये जो हम आज का जो प्रोग्रेस देख रहे हैं वो वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि आज भी वही चीज है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना. वही टेम्पलेट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, है ना. आज भी आप बहुत सारे लोग जो है, आप पैदा हुए तब से आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि अनाज कहाँ से आता है, लेकिन वो अनाज जो है वो ग्रेन्स ही तो है जो अल्टीमेट हमारा सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है. हमारी टेक्नोलॉजी से, है ना, हमारे रिसोर्स एक्विजिशन से, नॉलेज से, बिलीफ सिस्टम से, प्रैक्टिकल व्यू से, वो सब सेकेंडरी है. जो प्राइमरी थिंग है, इट इज टू सर्वाइव. और वो सर्वाइवल जो होता है हमारा फूड ग्रेन से होता है, और वो फूड ग्रेन जो है इट इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो वो टेम्पलेट जो है ऑलरेडी इट गॉट इंश्योर्ड इन नियोलिथिक टाइम्स, दैट इज 10,000 ईयर्स अगो. इसकी वजह से आज 2025 में जो भी आज के टाइम में पैदा होता है, सो उनको इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है. उनको जो उस टेम्पलेट से आगे कहाँ जा सकते हैं, है ना, 5G से आगे 6G, 6G से आगे 10G, AI है, AI के बाद भी अगर ये रियलिटी है, ऑल रियलिटी है, देन वी कैन हैव अ न्यू फ्लूइड रियलिटी. सो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, बिकॉज दैट्स हाउ टेम्पलेट्स वर्क. सो वो चीज उस टाइम पे वहां पे हो गई थी, और उसी के साथ जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है, या जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, दे वो चैनलाइज इनटू सम अदर ऑक्यूपेशंस, एंड दैट्स हाउ टास्क डिफरेंशिएशन एंड टास्क स्पेशलाइजेशन
came into picture and it boosted our civilization in such a way. फिर जो सेकंड जो रिवॉल्यूशन की बात की है, which is the advent of writing and urban civilization. So ये टाइम जो है, it was the time of Chalcolithic period. So Chalcolithic और उसके बाद जो कॉपर ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज, इन तीनों ही एज के दौरान जो मेटल है, it boosted our civilization. It provided a new throttle, a new conveyor for our civilization. और ये कह सकते हैं कि मेटल के साथ ही बहुत सारी चीजें जो है वो शुरू हुई. फॉर एग्जाम्पल, मेटल के साथ ही ट्रेड शुरू हुआ. जो वो चीज जो पहले बताई थी वही है. तो जब ट्रेड शुरू हुआ तो उसके साथ ही टास्क और बढ़ गई. जैसे आज के टाइम में होता है ना. आज के टाइम में अगर एआई, जैसे अगर 5G कह रहे हैं, इंटरनेट कह सकते हैं. सो अगर वेब से हम लोग वेब 3 में जाते हैं, या फिर एआई से हम फ्लूइड रियलिटी में जाते हैं. सो यहाँ पे ये जो रैम्पैट है, ये जो स्कैफोल्ड है, इट कम अप विद अ लॉट ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस. सो आने वाली जो जो पॉपुलेशन है, आने वाली जनरेशन है, दे विल लैच ऑन टू द एसोसिएटेड टास्क. सो इवन दो जो प्रेजेंट में जो है उनके लिए काफी ये एक अनवांटेड ट्रांजिशन होगा, बट पॉइंट यही है कि हर एज के अंदर कोई ना कोई ये नया मेटल आता है. जिस तरह से हमने स्टोन से कॉपर के अंदर ट्रांजिशन किया, तब उसके साथ बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई. सो जो ट्रेड है, ट्रेड के साथ बहुत सारे टास्क आ गए. टास्क के साथ ही फिर वो वेल्थ आ गया. वेल्थ के साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देन नीड फॉर सिक्योरिटी. तो इस तरह से जो जब टास्क ओपन होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे अदर ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं. सो यहाँ पे इन सब की वजह से द urbanization also started. क्योंकि नियोलिथिक टाइम तक we did not need that security, we did not need to protect our boundary, we did not need to create fortress. लेकिन सिक्योरिटी एलिमेंट ये आ गया जब हम टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करने लग गए. सो दिस अर्बन रिवोल्यूशन स्टार्टेड अराउंड 3500 BCE in the Levant, मीन्स मेसोपोटामिया, इराक, जो आज के टाइम में ईरान है, इराक है, इजिप्ट है. सो यहाँ पे ये जो कुछ फीचर्स हैं जो गॉर्डन चाइल्ड ने बताए: सरप्लस प्रोडक्शन, देन मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइटिंग सिस्टम, क्राफ्ट, ट्रेड एंड पोलिटिकल सेंट्रलाइजेशन. नाउ आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से एक नोमैडिक एनिमल सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट की वजह से स्टार्टेड एक्वायरिंग दीज मैनी थिंग्स. क्योंकि अगर आप ये बात करें, जैसे ये नियोलिथिक में भी साइन 7000 to 9000 BC ये वाला टाइम था, और ये 3000 BC. तो सिर्फ 5000 सालों के अंदर वी मेड दैट ह्यूज लीप. और वो शुरू हुआ विद आवर ट्रांजिशन टू मेटल. So this transition of metal, it came with the adoption of technology. And now that adoption of technology, it was not any divine intervention. It was our conscious effort. It was our exploration, our foraging, our scientific bent of mind, our cause and error, our leap from religion and superstition to look at various scientific patterns. So ये सब जो चीज हुई, so उसके साथ ही ये सब चीजें जो है वो एसोसिएटेड है. कैसे? नाउ अब यह है कि जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो तो वैसे ही नियोलिथिक तक एंश्योर हो गया. फिर अगेन व्हेन वी हैव सरप्लस प्रोडक्शन, तब सर्वाइवल इंश्योर होता है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता है. पॉपुलेशन एक्सपेंशन मतलब बहुत सारी हमारे पास पॉपुलेशन है विच कैन बी चैनलाइज इनटू डिफरेंट निशेस. तो एक तो ये चीज है, एक इंसेंटिव है. फिर सेकंड ये है कि जब हमारे पास मेटल आ गया, देन दिस ट्रेड ऑल्सो स्टार्टेड. अब ट्रेड की वजह से फर्स्ट राइटिंग की जरूरत पड़ी, बिकॉज ट्रेड नीड दैट एग्रीमेंट.
जो अग्रीमेंट है जो शुरू हुआ था सील्स या इंसिग्निया हो गया इन सब से, और फिर लेटर ऑन इट गिवन क्लियर कट alphabetic system or writing system. So that's how writing showed up. फिर यही आप जो बार बार कहा कि मेटल की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, वेल्थ डिस्पैरिटीज आई, वेल्थ डिस्पैरिटीज की वजह से वी नीडेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इन्वेडर्स, क्योंकि जहां भी वेल्थ होती है वहां पे इन्वेजन का खतरा रहता है। अब जब हम वो प्रोटेक्शन बनाने लग गए, वो है ना, आउटर बाउंड्री हो गया, बाउंड्री वॉल्स हो गया, फिर फोर्ट्रेसेस हैं, सो इन सब के साथ ही आर्किटेक्चर को भी बूस्ट मिला, क्योंकि अब वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मीन्स इफ यू आर बिल्डिंग, अब अपने लिए घर बना रहे हैं तो फिर अच्छा ही बनाओ। तो यहाँ पे एक और सेपरेट टास्क हो गई, फिर एक सेपरेट टास्क जो है राइटिंग सिस्टम की हो गई, फिर उसके साथ ही जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है वो तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो सो हर एक टेक्नोलॉजिकल एज जो है, इट इज लाइक लिफ्टिंग अप द हुड, लिफ्टिंग अप द होल सोशल फैब्रिक। तो एक साथ ही पॉपुलेशन के हर एक रख रखाव में चेंज आता है। बिकॉज ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में अगर एक अच्छा सा महल बना हुआ है, बड़ा सा घर बना हुआ है, तो और उसके पास में आप बिल्कुल नोमैडिक की लाइफ या फिर है ना बिल्कुल जंगली लाइफ तो आप जिएंगे नहीं, आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनाएंगे ही बनाएंगे। सो वही चीज है कि किस तरह से सोसाइटी पूरी ऊपर जाती है। सिमिलरली अगर आपके आसपास सब कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो फिर आप वो जंगली छाल या फिर शेर की खाल वो सब पहन के नहीं घूमेंगे। सो दैट्स ऑब्वियस कि किस तरह से जो सोशल फैब्रिक ऊपर उठता है। और फिर जब ये सब चीजें आ गई, प्रोटेक्शन आ गया, सिक्योरिटी एलिमेंट आ गया, वेल्थ डिस्पैरिटीज है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो फिर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन भी। सो दैट्स हाउ ही इक्वेटेड द अर्बन रिवोल्यूशन विद द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। एंड उसके लिए ही अंडरटुक टू स्टडीज कि जैसे मेसोपोटामिया में ही फाउंड इरिगेशन स्ट्रक्चर, द राइटिंग स्क्रिप्ट, टेम्पल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेन स्टोरेज, टैक्स कलेक्शन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यही चीज जो है वो नाइल वैली के अंदर भी मिली कि द पिरामिड्स वर देयर। पिरामिड्स आप लोगों को पता है कितनी बड़ी स्ट्रक्चर है, मैसिव स्ट्रक्चर्स। और वो मैसिव स्ट्रक्चर जो है वो बिना सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन के हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू नीड टू मोबिलाइज लेबर। और ये चीजें जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्चुअल या पर्सनल या सोशल या रिलीजियस नहीं हो सकती। इट हैज टू बी पोलिटिकली सेंट्रलाइज, क्योंकि बाकी सब चीजों के अंदर कोई ना कोई जो है मनमुटाव हो सकता है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है। बट पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन इट हैज द फोर्स, बिकॉज यह पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के पास दोनों चीजें होती है, वेपन्स होते हैं, द कमांड है, अथॉरिटी है, एंड देन द मैंडेट है। सो इन सब चीजों की वजह से दे कैन चैनलाइज दिस वर्क, दे कैन मोबिलाइज वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पे पिरामिड्स ये पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन दर्शाता है। फिर राइटिंग सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इरिगेशन। सो ये दोनों ही जो सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन चाइल्ड, दे रिप्रेजेंट द सेकेंड स्टेज नोन एज अर्बन रेवोल्यूशन। फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सो सम क्रिटिसाइज दैट ही ओवर एम्फेसाइज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, और जो बाकी जो सिंबॉलिक यूनिवर्स है, रिचुअल, आइडियोलॉजी, सोशल एजेंसीज, पर्सनल बिलीव्स, सुपरस्टिशन, रिलीजियस क्राइटेरिया, वो सब जो है चीजें ध्यान नहीं दी गई। फिर सेकंड criticism leveled on him is of being a covert racist. So even though he appeared to be critical of racism in all forms, but his works they remain confined to Near East and Europe. क्योंकि आप देख सकते हैं या तो द फर्टाइल क्रेसेंट के अंदर है या फिर लेवेंट के अंदर है। सो यह दो जगह पे ही उसकी मेजर केस स्टडीज हैं। बाकी जो जगह है अफ्रीका, एशिया, डीप एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे नहीं दिए गए, यहाँ पे कोई स्टडी नहीं ली गई। एंड फाइनली, even though he did not talk about any stages or any linearity, but then his work it suggests कि the society must progress in that linear manner. जैसे कह सकते हैं ना कि
परमानेंट सेटलमेंट है तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड अर्बन सिविलाइजेशन है, देन द सेकंड स्टेज। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेस्ली वाइट। Leslie White brought both scientific and materialist aspect to the evolution of culture. So according to him, cultures evolve in proportion to their increasing ability to harness energy. So अगर आप और सिंपल समझना चाहें तो according to him यहाँ पे culture is proportional to energy efficiency. So that's what his idea was, and उसके लिए he drew inspiration from thermodynamics, systems theory, and then Marxist materialism, जो आपको भी गॉर्डन चाइल्ड के अंदर बताया था, historical materialism वाला। Now his core formula C is equal to ENT. Now आप में से बहुत सारे लोग जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, so you know this proportional sign, that C is proportional to E. C is cultural evolution, E is energy efficiency, और अगर आप और बेटर टर्म्स में समझना चाहें सो इट इज द इंक्रीजिंग एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी। सो आप जिस भी तरीके से आप इसको समझते हैं, एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी, और बहुत सिंपल समझना चाहें तो एनर्जी एफिशिएंसी। फिर प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यू नो वी नीड अ कांस्टेंट, सो यहाँ पे वो कांस्टेंट है टी। तो टी इज द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और वो आप समझते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी तभी आएगी when we undertake any technological upgradation, क्योंकि बिना technological upgradation के energy efficiency, the ability to harness energy is not possible without undergoing any technological transformation. जैसे ये कहें कि स्टीम इंजन से डीजल इंजन के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह से ये आप बसेस में आजकल तो लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन पहले बसों के नीचे ये BS3, BS4, फिर अभी जो है BS6। सो ये जो है ये टेक्नोलॉजिकल एक शिफ्ट है, इट इज काइंड ऑफ द अपडेटेड फिल्टर। अब ये जो चेंज है ये भी इस आइडिया को पूरी तरह से फुलफिल करता है कि अगर एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, ये अपडेटेड फिल्टर जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। सो अगर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए और पोल्यूशन कम करना है, देन स्विच फ्रॉम BS4 टू BS6। सो BS4 से BS6 सिर्फ लिखने से वो एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी आएगी, वहां पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो 1990s या उसके पहले पैदा हुए, सो दे हैव सीन द सोडियम लाइट्स इन देयर हाउसेस, जो सोडियम बल्ब हुआ करते थे 100 वाट के बल्ब। सो अब वहां पे 100 वाट से जो आज जो LED बल्ब्स आते हैं 5 वाट के, सो अब ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए वी हैड टू अंडरटेक दिस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि उन बल्ब के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से जो रोशनी 100 वाट का बल्ब दे रहा था वही रोशनी जो है 5 वाट का बल्ब दे रहा है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ हियर। अब ये आपको बड़े लेवल पे देखना है, बड़े कल्चरल लेवल पे, कि कल्चरल एवोल्यूशन इट विल डिपेंड ऑन द ability of every culture to harness energy efficiently, and then that efficiency will come only if any technological transformation are undertaken. एंड यहाँ पे एक तरह से ये आइडिया है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का, और समहाउ इसके अंदर भी वो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वाला एक हिंट मिलता है कि वो सोसाइटी दैट यूजेस एनिमल लेबर विल हैव लो टी, एंड लो टी मीन्स लो कल्चर, लेस कल्चरल इवोल्यूशन, और then the society that use fossil fuels will have high T. High T means high energy efficiency, and high energy efficiency means higher cultural stage. So even though यहाँ पे explicitly वो चीज़ नहीं कही गई है, but idea वही है। फिर Leslie White, he gave 5 evolutionary stages. So first, society that uses human muscle power means physical labor. So जैसे जो hunter gatherer society है, like Kong of the Kalahari Desert, या Inuits, या वो जितनी भी indigenous society जो अभी भी physical labor, foraging, hunting, gathering इन सब में लगे हुए हैं, so
they are at the stage 1, level 1, because they are not using energy efficiently. They have low T and low E. So उन दोनों की वजह से cultural evolution भी कम. Then the second society that uses the power of animals, animal power, domesticated animals. So जो agricultural society है, they use the domesticated animals. So वो उनकी जो efficiency है वो physical labor से ज़्यादा है. Then those society that use that manage photosynthetic energy, means जो agricultural civilization है, not the agricultural society but agricultural civilization that depend primarily on agrarian work, but then they have also undertaken many energy changes, such as उनके पास pumps हैं, उनके पास irrigation techniques हैं, उनके पास sprinklers हैं, plowing है, tractors हैं. So ये सब जो है ये plant based society है, and they will have higher T higher T and E than that of the society that uses human power or animal power. और उसकी वजह से इनकी जो सिविलाइजेशनल वैल्यू है, कल्चरल इवोल्यूशन है, वो भी इन दोनों से बेटर हो. देन द सोसाइटीज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट started using engines, started using machine by power of fossil fuels. So fossil fuel की वजह से अब ये सोसाइटी जो है, they have higher technological transformation, higher energy efficiency, and then higher index of cultural evolution. And finally, according to Leslie White, there comes the society that make use of nuclear energy. So यहाँ पे this nuclear energy, it represent the highest level of energy harnessing. Where to back up his claim, he provided 2 case studies. कि first ब्रिटेन के अंदर जब steam engine was introduced, so steam engine, it used the power of steam. So एक तरह से this was technological sophistication, technological transformation and higher energy efficiency. बाकी उससे पहले की सोसाइटी से तो ज़्यादा ही एनर्जी एफिशिएंसी थी. फिर स्टीम के बाद डीजल इंजन आया, फिर यही चीज़ जो है डीजल इंजन के बाद फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर बीच में जो है कोल, ये भी. तो ये सब जो है दे आर अ वे टू एनहेंस द एबिलिटी टू हार्नेस एनर्जी. तो यहाँ पे जब जो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, इससे समझ लीजिए कि कल्चरल इवोल्यूशन डिपेंड डायरेक्टली ऑन एनर्जी एफिशिएंसी. यानी अगर एनर्जी एफिशिएंसी ऊपर जाएगी तो कल्चरल इवोल्यूशन भी ऊपर जाएगा. So that's not me speaking it out. It is the words of Leslie White. फिर ये अगेन बैक टू द केस स्टडी कि स्टीम इंजन की वजह से द ब्रिटेन जो है इट शिफ्टेड टू मास प्रोडक्शन. फिर मास प्रोडक्शन की वजह से वेल्थ आई, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ. और यहीं पे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं ऑफ सब सहारन अफ्रीका, इंटीरियर एशिया, जो अभी भी एनिमल या प्लांट बेस्ड एनर्जी सिस्टम पे है, तो उनकी जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री है, कल्चरल एवोल्यूशन है, इट इज़ क्वाइट इन्फीरियर. फिर और ये आइडिया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट द कांस्टेंट हियर इस इक्वेशन में C is directly proportional to E. सो इसके अंदर जो कांस्टेंट है T, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. सो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट एज, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इवॉल्व होना है तो आपको एनर्जी एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, और एनर्जी एफिशिएंसी बिना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं आएगी. सो यहाँ पे मतलब वही है कि द बेस इज टेक्नोलॉजी. फिर देन यहाँ पे एक बिना किसी रेशियल टोन के ही गेव अ न्यूट्रल क्राइटेरिया कि कल्चर्स आर नॉट morally superior or creative. It is just the ability to harness energy. जो एनर्जी अच्छी तरह से हार्नेस कर लेगा, दे विल इवॉल्व. फिर क्रिटिसिज्म जो दिख रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. सो अगेन जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ही इग्नोर्ड द सिंबॉलिक यूनिवर्स, आइडियोलॉजी, सिंबल, वैल्यू, सोशल एजेंसी जो ज़रूरी होता है. हर कोई जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में की तरफ नहीं जाता. देन he also underemphasized the ecological
consequences of energy expansion, क्योंकि अगर आप एक जो लिमिट है सो एनवायरनमेंट की, अगर उसको ब्रीच करते हैं, उससे बाहर जाते हैं, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं. एंड फाइनली द एथनोसेंट्रिक एप्लीकेशन, which means the Eurocentric bias. कि even though he did not explicitly mention कि यूरोपियन सिविलाइजेशन या यूरोपियन मॉडल जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, बट देन ही ऑल्सो फेवर दिस इंडस्ट्रियल मॉडल, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, दे they harness energy efficiently, and that's why they have their cultural index higher than the society that employ plant or agricultural based animal power. Anyway, फिर हम आगे बढ़ते हैं. जूलियन स्टुअर्ट. तो यहाँ पे जूलियन स्टुअर्ट ने कहा है कि दैट कल्चर्स इवॉल्व इन प्रोपोर्शन टू देयर इकोलॉजी. सो द यहाँ पे जो कल्चरल इकोलॉजी का कंसेप्ट है, इट सेज कि कल्चर दे आर एन एक्सप्रेशन दैट इज adaptation to their immediate environment. So simply हम ये कह सकते हैं कि according to him, culture is adaptation of that species, that those individual or those groups towards their immediate environment. इसको समझाने के लिए ये आइडिया है कि जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पिट ड्वेलिंग्स ये एक मोड ऑफ एग्जिस्टेंस था. तो अब पिट ड्वेलिंग्स जो है, वो कौन जो है खड्डे में रहना चाहेगा, बट उस वक्त जो जो सोसाइटी थी, स्पेशली ये कह सकते हैं कि पेलियोलिथिक के टाइम से लेकर नियोलिथिक के टाइम तक, तो उस टाइम पे जब जो आज की जो स्ट्रक्चर नहीं थी, आज की जो जिस भी तरह के हाउसिंग स्ट्रक्चर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, और केव्स वगैरह में, इतनी ठंड में केव्स वगैरह में रहना भी है ना इम्पॉसिबल है. सो द बेस्ट वे आउट, बेस्ट एडेप्टेशन is to dug pit and find warmth there. Similarly, अगर desert के लोग जो है, if they wear white cotton clothes, so ये कोई है ना इंडिविजुअल फैशन स्टेटमेंट नहीं है, या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि हम वाइट पहन रहे हैं क्योंकि नो वी रिफ्यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. वैसा भी नहीं है. वाइट पहन रहे हैं बिकॉज इट इज देयर cultural the environmental limit, कि उस गर्मी के अंदर वो किसी और तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि वाइट ही है जो उस हीट को, उस हाई सनशाइन को उसको रिफ्लेक्ट करता है. बाकी अगर किसी भी तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, जैसे कह सकते हैं कि डार्क कलर्ड जो क्लोथ्स हैं, तो वो जो हीट को जो वो रिटेन करेंगे, और फिर उससे वो जो पर्सन्स हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे. तो यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, या और कह सकते हैं इसमें कि जैसे अगर आर्कटिक के लोग हैं, अब वो आर्कटिक के लोग अभी भी वो गर्म कपड़े पहनते हैं. तो गर्म कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ठंड है. वही डेजर्ट के लोग जो हैं वो बहुत ही लूज वाइट कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है. तो यहाँ पे दोनों का कल्चर जो है, it is a response to their immediate environment. So culture in that sense, it becomes an adaptation. Then he also said कि different cultures they evolve along different paths. So ये एक और जो आइडिया है, so यहाँ पे मल्टीलीनियर अप्रोच के बारे में कहा गया है. So अब now कोर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. So first cultural ecology. So cultural ecology जैसे बताया, cultural ecology means that human society they have their adaptive system, और वो adaptive system it depends on their specific ecological niche. डेजर्ट है वाइट कपड़े, फिर आर्कटिक है तो गर्म कपड़े. सो ये जो बिहेवियर है, द बिहेवियरल अडेप्टेशन, इट इज व्हाट कल्चर इज, और उसको हम कह सकते हैं कल्चरल इकोलॉजी. फिर कल्चरल कोर की बात करते हैं. सो कल्चर कोर के अकॉर्डिंग स्टुअर्ट सेड कि कहीं की भी सोसाइटी हो, चाहे डेजर्ट की हो, ट्रॉपिक्स की हो, सब ट्रॉपिक्स की हो, इंटीरियर्स की हो, या जो मार्जिन्स की हो, सब में कुछ जो चीज़ें कॉमन होती है. यानी जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है, जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का है, तो उसमें कंसेप्ट ये है कि हर कोई सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ना चाहेगी, उनमें प्रोग्रेस तो हर कोई चाहता है. सो
ये जो 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 फीचर्स हैं, जो कोर फीचर्स हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। तो जैसे दूसरे टर्म्स में कहें, सो कल्चर कोर मीन्स द डायरेक्ट टूल्स ऑफ एडेप्टेशन, डायरेक्ट टूल्स ऑफ एडेप्टेशन। और अडेप्ट कोई भी सोसाइटी क्यों करना चाहेगी? क्योंकि दे नीड टू सर्वाइव एंड प्रोग्रेस, दैट्स बेसिक आइडिया। सो फर्स्ट, टेक्नोलॉजी, कि हर कोई सोसाइटी कहीं की भी हो, दे विल अंडरटेक दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टूल्स के अंदर, इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर। जैसे ये बात करते हैं, जहाँ भी ठंडा इलाका है या फिर है ना, जो टेम्परेट सोसाइटी है, स्पेशली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जापानीज हो गया या फिर जो ईस्ट एशियन सोसाइटीज हो गई, अब वहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, तो स्नोफॉल भी बहुत होता है। सो ऐसे में जो उनके पास उनकी जो हाउसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इट मेड गुड यूज ऑफ वुड। अब इसी के कंपैरिजन में अगर आप डेजर्ट सोसाइटी को देखेंगे, सो दे यूज अ लॉट ऑफ मड। सो ये जो डिफरेंसेस हैं वुड बिटवीन मड, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एडेप्टेशन पे। नाउ वुड वहाँ पे उन सोसाइटीज के लिए ज़रूरी है बिकॉज इट कैन टॉलरेट हीट, इट कैन रेगुलेट टेम्परेचर, देन वुड ऑल्सो it can be helpful in absorbing shocks and seismic waves. अगर अगर अर्थक्वेक आता है तो जो वुडन स्ट्रक्चर है उनसे लॉसेस कम, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो ये वहाँ का अडेप्टेशन है। यही डेजर्ट की बात करें, सो दे फेस around 270 days a year of dry and हॉट वेदर। अब ऐसे में जो बाकी कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, वुड की बात करें, सो वुड तो वहाँ डेजर्ट के अंदर इट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट लॉन्ग। एक दो साल के अंदर ही दे विल गेट डीह्यूमिडिफाइड, पूरी तरह से वो क्रैक हो जाएंगे, इंटरनली क्रैक हो जाएंगे। फिर अगर कोई और अगर स्टोन वगैरह लेते हैं, तो स्टोन दे विल अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट। सो उसके लिए ऐसे में उनका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। एंड देन ऐसी सोसाइटी के अंदर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर गर्मियों की बात करें समर के अंदर, सो उनका घर जो है इट विल बिकम एन इन्फर्नो। क्योंकि गर्मियों में तो जो जो हीट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक शुरू, सुबह के 7 बजे से हीट शुरू हो जाती है रात को 12 बजे तक, तब घर को ठंडा होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सो ऐसे में वो नहीं रह सकते। सो ऐसे में मड वहां पे काम आती है कि मड को गीला रखा जा सकता है। मड ये हीट एब्जॉर्ब करती है और साथ में ही ये बहुत ही जल्दी उसी हीट को वापस रिफ्लेक्ट भी कर लेती है। तो अभी ये जो इंडिविजुअल अडेप्टेशन है, टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन, वो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है। फिर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। सो कौन सी सोसाइटी किस मेन ऑक्यूपेशन के अंदर है, आपको एक तरह से इमेजिन करना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिजिनस सोसाइटीज। सो अब जिस सोसाइटी के अंदर एग्रीकल्चरल एवेन्यूज हैं, दे विल एंगेज इन फार्मिंग। फिर जहाँ पे दे कैन आसपास प्रॉक्सिमिटी के अंदर द वेजिटेशन इज इन पैचेस या पास्टरलैंड्स हैं, सो वहाँ पे दे विल गो फॉर हर्डिंग। और फिर जहाँ पे वेजिटेशन वगैरह नहीं है, तो फिर फॉरेजिंग है और या फिर हंटिंग गैदरिंग है, इस तरह से। फिर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डिपेंड करता है किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। एंड सेटलमेंट पैटर्न, वो भी अगेन, जैसे अगर आज हम हिंदी हार्टलैंड की बात करें, सो जो हिंदी हार्टलैंड है विच इज़ जो भी यूपी हो गया, एमपी हो गया, वेस्ट ईस्टर्न राजस्थान है, फिर जो थोड़ा बहुत एनसीआर का हिस्सा है, थोड़ा बहुत बिहार का है, जो भी जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग एरिया है। आप इसको अगर स्टेट वाइज पोलिटिकल में नहीं देखें, सो द एरिया, द होल एरिया दैट इज फेड बाय हिमालयन रिवर्स एंड इज सिचुएटेड ऑन एन अंडरलाइंग अलूवियल बेडरॉक, अलूवियल प्लेन जो भी है।
तो अब उस अल्यूवियल प्लेन में इतनी सारी नदियां हैं, तो वहां पे वेजिटेशन खूब सारी है, ना इरिगेशन की जरूरत नहीं, पानी ही पानी है। तो वहां पे जो पॉपुलेशन है इट इज क्वाइट डेंस। और यही अगर हम रिमोट एरियाज की बात करें, जैसे लद्दाख की बात करें, सो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। सो वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत कम है। वहाँ पे सॉरी पेट्रोल जो पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। सो यहाँ पे दोनों डिफरेंसेस देख सकते हैं, डेंस वर्सेस रेयर। सो वो भी डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। एंड देन ये चीज़ तो बता दी कि दे ही रिफ्यूटेड यूनिलिनियर इवोल्यूशनिज्म एंड इंस्टेड एडवोकेटेड फॉर मल्टीपल इवोल्यूशनरी लाइन, कि हर एक सोसाइटी की अपनी एक इवोल्यूशनरी ट्रजेक्टरी है, एंड दैट evolutionary trajectory it is directly proportional to its environmental adaptation. जैसे केस स्टडी उसमें so he studied Shoshone people of the Great Basin region of Western North America. So यहाँ पे he said कि जो Shoshone जो है they live in an area which is water scarce, so and vegetation is also widely dispersed. So ऐसे में Shoshone they live in small mobile units. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्यूवियल प्लेन के अंदर जब सब चीजें जो हैं अवेलेबल है तो दे लिव इन अ डेंस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे वो चीजें अवेलेबल नहीं है सो दे लिव इन अ स्मॉल यूनिट्स। फिर अगेन रिसोर्स स्ट्रेटजी, जो कल्चर कोर की बात की इसी के पहले, कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक प्रैक्टिस, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डिपेंड करता है। सो रिसोर्स स्ट्रेटजी वो भी यही है उनकी, कि उनकी मेन डाइट जो है, जो वहाँ पे अवेलेबल होगा वही उनको मिल पाएगा। सीड प्लांट्स हैं, रूट्स हैं, स्मॉल गेम्स हैं, एंड देन वो फूड गैदरिंग जो है इट आल्सो नीड द ऑक्यूपेशन, कि वो उसके लिए दे नीड टू बी हाईली मोबाइल, क्योंकि जो फूड अवेलेबिलिटी है इट इज आल्सो सीजनल। फिर अगेन ही अंडरटुक रीजनल कंपैरिजन व्हिच इज सिमिलर टू, अगर आप अभी की बात करें इसी लेक्चर की, सो यू कैन कंपेयर Shoshone पीपल विद द पीपल ऑफ alluvial प्लेन, उन दोनों में। सो जो पेरिवियन हाईलैंड है द इनका सिविलाइजेशन, सो वहाँ भी जो एरिया है हाईली फर्टाइल एंड हाई ऑल्टीट्यूडनल रीजन, सो वहाँ पे दे कल्टिवेट क्रॉप्स, क्योंकि एरिया जो है उस मतलब फर्टाइल भी है, इरिगेशन भी उनके पास खूब है, तो पॉपुलेशन डेंस है। और अगर पॉपुलेशन डेंस है तो रिसोर्सेज है तो टास्क स्पेशलाइजेशन है, टास्क स्पेशलाइजेशन है तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू है तो वेल्थ डिस्पैरिटी है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है तो दे नीड सेपरेट टास्क ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी क्योंकि सिक्योरिटी अब जरूरत पड़ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होगा, वॉर है, कॉन्क्वेस्ट है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस है, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से। फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सो ही इज क्रिटिसाइज्ड for oversimplifying culture just as a response to the environmental limits. So वो चीज भी एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हर जगह पे जो लोगों का एग्जिस्टेंस है इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर रिस्पॉन्स। सब सिर्फ सर्वाइवल के लिए लोग नहीं जीते हैं, वही अगेन जो इससे पहले ही क्रिटिसिज्म हुआ है कि सिंबॉलिक यूनिवर्स है उनका, देन द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो देयर। फिर ही अंडर एम्फेसाइज हिस्ट्री, कि जो जो हिस्टोरिकल कंटिजेंसी है, कॉलोनियल एनकाउंटर्स है, कल्चरल एजेंसीज हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही जो क्रिटिसिजम्स हैं दे आर अबाउट फैक्टर्स, कि अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड करें, सिर्फ इकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल लिमिट्स जो है दे कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर कल्चरल एवोल्यूशन। और नेक्स्ट ये है इनएडिक्वेट फॉर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें ये आइडिया काम नहीं करता, क्योंकि आज जो है जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी भी जगह की बात करते हैं, जैसे अब लद्दाख की बात करें, अब लद्दाख में आज के टाइम पे नहीं तो काजू उगते हैं, नहीं सेब उगते हैं, नहीं गेहूं उगता है, ये किसी भी तरह की जो मेजर वेजिटेशन है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन लद्दाख के लोग जो है वो आज कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो मेजर जो
रिटेलर है या होलसेलर है, वो अपनी एक ब्रांच वहाँ पे फ्रेंचाइजी में लगा सकता है। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो सकती है। और आज हमारे पास जो है हर कोई चीज़ जो है वो फ्रोजन और रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। मैं मतलब पहले के टाइम में जो मटर है वो सीजन के अकॉर्डिंग ही लोग खाते थे। आज आप किसी भी सीजन के अंदर कोई भी चीज़ खा खा सकते हैं, क्योंकि वो एक फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल है। सो उस हिसाब से यही जो जो एनवायरमेंटल लिमिट का आइडिया जो है वो अब मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। Now, Marshall Sahlins, he reconciled the ideas of Leslie White and Julian Steward. Now, Leslie White का आइडिया है cultural evolution is directly proportional to the ability to harness energy. Cultural evolution directly proportional to energy efficiency, or Julian Steward, who spoke about uh, culture as an adaptation to the environmental limits. So उन दोनों को आइडिया मिक्स करके फ्यूज करके ही गेव न्यू आइडिया। सो उसमें ही रेफर टू बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन। सो जनरल एवोल्यूशन मीन्स जो ब्रॉड एवोल्यूशनरी पैटर्न्स हैं विच जो हर एक सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है। ये हर कोई सोसाइटी जो है with time it will become increasingly complex in social, economic and political lines. तो हर एक सोसाइटी जो है जब उसकी जो बेसिक नीड्स, क्योंकि ये हम समझ सकते हैं हर एक सोसाइटी जो है इट स्टार्ट विद द बेसिक प्राइमरी थिंग्स, सर्वाइवल। जब सर्वाइवल इंश्योर हो जाता है देन दे मूव ऑन टू द सेकेंडरी थिंग्स। जिस तरह से हम बड़े हैं, है ना, जब पेलियोलिथिक टाइम तक, मेसोलिथिक टाइम तक it was our survival which was our our priority। लेकिन जब वो चीज़ सर्वाइव हो गई विद डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारे पास जो है दिमाग और शरीर दोनों ही फ्री हो गए, तो फिर जो सेकेंडरी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती गई। तो आज ये है कि जो प्राइमरी चीज़ें जो है वो बहुत ही कम लेवल पे है, दे ऑक्यूपाइज ओनली अ स्मॉल आयोटा इन आवर एग्जिस्टेंस। और सेकेंडरी चीज़ें जो है उसका तो एक बड़ा यूनिवर्स ही क्रिएट कर लिया है। सो विद टाइम हर सोसाइटी जो है वो ना कॉम्प्लेक्स होती ही है इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर ये तो हो गया जनरल इवोल्यूशन। देन स्पेसिफिक इवोल्यूशन मतलब ये है कि अब कौन सी सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व हो रही है, कल्चरली किस तरह से इवॉल्व हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन कल्चरल डेवलपमेंट, इट्स ओन कल्चरल ट्रेजेक्टरी। और उसकी कल्चरल ट्रेजेक्टरी वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हिस्ट्री हो गई, इकोलॉजी हो गई, सिंबॉलिक सिस्टम हो गया, दे ओन एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, उनका और अपना खुद का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, दो सोसाइटी है। अब दोनों ही सोसाइटी जो है उनको पता है कि जब सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा, जब उनके पास सरप्लस फूड होगा, तब है ना वो और भी चीजें करने लगे, उनके पास भी गाड़ी घोड़े आएंगे, उनके पास भी है ना छोटी सी दुकान है उसको और बड़ा करेंगे, एक्सपेंशन होगा। फिर बड़ी दुकान से फिर वो है ना और अपनी खुद की चेन प्रिपेयर करेंगे, एक फ्रेंचाइजी क्रिएट करेंगे, और गाड़ी आएगी और मकान बनेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, बहुत सारे लोगों को धंधा मिलेगा। तो ये सब चीजें दोनों सोसाइटी में। अब ये है कि अब वो दोनों सोसाइटी कहाँ पे है ये डिपेंड करता है ना। अगर ये सोसाइटी है जिसने एक चाय की दुकान से शुरू की है, और ये वाली जो है जिसके पास ऑलरेडी एक रिटेल शॉप है, तो अब उनकी ट्रेजेक्टरी जो है एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन में कि दोनों ही मेहनती है, दोनों ही काम करने वाले हैं, और दोनों ही जो है अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो दोनों की ट्रेजेक्टरी जो है वो अलग हो जाएगी, है ना। कि ये वाला जो है इट विल बी स्लो इन कैचिंग अप, और ये वाला जो है इसके पास पहले ही रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप के साथ ही धीरे धीरे अपना जो दुकान है उसको बढ़ा के उसमें और प्रोडक्ट लाएगा, है ना। पहले सिर्फ रिटेल शॉप थी, साथ में सब्जी की दुकान भी लगा दी, दूध की डेयरी भी लगा दी, उसको और बड़ा किया। पहले सिर्फ रिटेलर था, वो होलसेलर हो गया। फिर धीरे धीरे और भी लोगों को काम मिलने लग गया, और कंस्ट्रक्शन हुआ, आसपास के लोग भी आ गए, एक बड़ा मार्केट प्रिपेयर किया। फिर उस बड़े बड़े मार्केट में जो छोटी छोटी फ्रेंचाइजी जो है आसपास के गांव में दी। तो इस तरह से दोनों की जो जो ट्रेजेक्टरी है वो इंडिविजुअल ट्रेजेक्टरी है, बट अल्टीमेटली दोनों ही प्रोग्रेस की तरफ ही जाना चाहेंगे। फिर in his famous essay, The Original Affluent Society, so he talked about the assumption of hunter-gatherer lifestyle.
सो बहुत लोग सोचते हैं कि हंटर गैदर लाइफ जो है इट विल बी पुअर, हार्श एंड प्रिमिटिव. But then, in his by drawing on ethnographic studies, he said कि जैसे जो कुंग सैन है of Kalahari Desert, so वो वहाँ पे they are not poor, they are not primitive, they are not living any harsh life. वो सिर्फ 15 से 20 घंटे काम करते हैं. उसके बाद they give time to leisure, family and ritual. Their lifestyle is far less stressful than the modern labor. Then कोई कंसेप्ट नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो रिजिड हायरार्कीज भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आप डायरेक्ट रिलेशन समझ सकते हैं कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगी तो सोशल डिफरेंशिएशन भी शुरू होगा, और इस वजह से क्लास डिविजन्स भी नहीं है. सो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वहाँ पे, और उनकी जो लाइफस्टाइल है इट इज इन बैलेंस विद द प्रॉक्सिमल एनवायरनमेंट. सो यहाँ पे इस स्टडी से पता चलता है कि इवन इफ दे हैव फ्यू पोजेशंस बट दे आर नॉट पुअर. फिर ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द रिडक्शनिस्ट मटेरियलिस्ट मॉडल्स. जो पहले जो मॉडल्स हैं, चाहे स्टुअर्ट के कहें, इवन गॉर्डन चाइल्ड का मॉडल है वो भी है ना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे ही है. तो ये मॉडल्स ऑफ गॉर्डन चाइल्ड, ऑफ लेस्ली वाइट, ऑफ जूलियन स्टुअर्ट, सब के सब जो है दे टॉक अबाउट this expansion, this progress through material lines. So यहाँ पे he said कि जरूरी नहीं है कि जो progress हो वो materially हो. So material progress through technological transformation, through energy expansion, through environmental degradation, all of them they will mean nothing if we do not have the other symbolic universe, because that symbolic universe provide the meaning. The symbolic universe it provide the purpose, the meaning, the social cohesion, ना the the entertainment part हो गया. फिर that social conjugal relationship हो गया, the normative relationship है. फिर उनका जो भी पर्सनल बिलीफ है, उनके रिचुअल्स हैं, एवरीथिंग सिंबॉलिक यूनिवर्स के अंदर फिर सब कुछ आ गया है ना. उनके फोकलोर्स हो गए, उनके बिलीफ सिस्टम हो गया, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गए, है ना. इवन दे ग्रीटिंग, द वे दे ग्रीट ईच अदर, द वे दे होल्ड ईच अदर इन एस्टीम और डिसडेन, सब के सब जो है सिंबॉलिक यूनिवर्स में है. सो अगर वो सिंबॉलिक यूनिवर्स ही नहीं है सो फिर तो उनमें और किसी एनिमल में फर्क क्या रहे, क्योंकि फिर वो एक एनिमल लेबर हो गया. आप उसको भले ही एक मटेरियलिस्ट अपीयरेंस देना चाहें, बट अल्टीमेटली ये सब काम करने का कोई सेंस तो होना चाहिए. जैसे अगर हम प्रिमिटिव को कहें, किसी इंडिजिनस जो ट्राइबल है उनको कहें कि आप लोग स्टीम इंजन ले लो, या आप लोग जो है आज के टाइम में एआई शुरू कर दो, है ना. वर्चुअल रियलिटी जो डिजिटल गैजेट्स है उनको यूज करो, 5G से 6G यूज करो. सो अब उनके लिए उस चीज का पर्पस भी तो होना चाहिए, क्योंकि वो क्यों यूज करेंगे, है ना. अगर उनको कहें कि आपको अमीर होना है, आपको अमीर बनना ही पड़ेगा, आपको सोसाइटी में प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव कार, तो अब उनके कार उनके पास लाने का पर्पस होना चाहिए. उनको कहें कि आपको अपने घर में वाटर प्योरीफायर लगाना पड़ेगा, आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, उसके साथ फिर एक एयरटेल का या जियो का जो एक कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको महीने का है ना 400-500 रुपए उसके लगेंगे. लैपटॉप का 40-45 हज़ार रुपये लगेगा. इस लैपटॉप को रखने के लिए घर चाहिए आपको, फिर गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, घर के अंदर वॉशिंग मशीन चाहिए. तो ये सब जो गैजेट्स जो है, ये सब मटेरियल्स जो है वो उनके सिंबॉलिक यूनिवर्स के अलाइन होने चाहिए. अगर उनकी सोसाइटी में वो चीज बड़े लेवल पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो फिर वो उन आइडियाज पे वो लोग जाएंगे ही नहीं. सो दैट्स व्हाई द सिंबॉलिक यूनिवर्स इट हैज टू अलाइन विद द मटेरियलिस्ट लाइंस. तो फिर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे पोलिनेशियन सोसाइटी है, वहां पे even though they have similar ecological settings, same the environmental limits, जो environmental landscape है वो एक जैसा ही है, but they have distinct cultural norms.
यानी उनका सिंबॉलिक यूनिवर्स जो है वो डिफरेंट है, एंड इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। मे बी जो उनके जो फाउंडर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनका अलग है। मे बी उनके अंदर जो फोकलोर्स हैं, जो मिथ्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, दे टेल टोटली डिफरेंट स्टोरी। मे बी उनका जो मॉरल फैब्रिक है या फिर जो उनकी इंटरनल बिल्ड है वो बिल्कुल अलग है। सो वो सिंबॉलिक यूनिवर्स जो है ये इग्नोर नहीं होना चाहिए। फिर क्रिटिसिज्म्स की बात करें, फर्स्ट ही वाज क्रिटिसाइज फॉर रोमांटिसाइजिंग द प्रिमिटिव्स, कि हंटर गैदर लाइफ जो है, यू मे से कि बिना मटेरियल्स के दे आर लिविंग अ वेरी ग्रैंड लाइफ, बट देन they also suffer from insecurity, they have short life, then intergroup conflicts are also there. फिर he was also criticized or also stopped from overgeneralizing his idea कि जो primitive Kung societies के जो observation है, they cannot be universally applied. And then he also underestimated the ecological limits. We the homo sapiens या जितने भी life forms हैं, हमारा कल्चर, हम लोग जो है, वी आर स्टिल बीइंग शेप्ड बाय, वी स्टिल बीइंग मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट वी लिव इन, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस नेचर। नेचर इज नॉट आवर प्रोडक्ट। हमने नेचर को नहीं बनाया, नेचर ने हमको बनाया। सो वो एक अल्टीमेटली अपर कैप हमेशा रहेगी। नाउ Elman Service. So Elman Service talk about the socio-political evolution. तो जो cultural evolution है Elman Service के according, it is of socio-political nature, कि political nature में हम लोग किस तरह से evolve हुए, किस तरह से complex societies बननी शुरू हुई। So he outlined 4 stages in his work, primitive social organization, which starts with the band. So band जो है small and egalitarian, on you know connected by the kinship network. Where bands are mobile, they have communal sharing, and decision making is done by consensus. Example कौन। फिर ट्राइब्स जो है, अब बहुत सारे बैंड्स जो है, बैंड मोइटीज फ्रेटरीज वो सब मिलके ट्राइब्स बनाते हैं। सो ट्राइब्स आर यूजुअली लार्जर देन दे आर सेडेंटरी, बिकॉज ट्राइब एक साथ मूव नहीं करती, बैंड्स मूव कर सकते हैं, बट ट्राइब्स बहुत बड़े एरियाज पे दे आर स्प्रेड ओवर, and usually sedentary, many lineages or clans are there. Where leadership, it is the elders council या फिर जो भी informally elected. फिर then the next stage is of chiefdoms. अब यहाँ पे हम indigenous लोग से हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए। सो यहाँ पे जो सोसाइटी है, जैसे जो पहले की जो पंचायत होती थी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, कास्ट पंचायत, सो वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जिसमें एक हेरेडिटरी चीफ है। सो हमारी पंचायत के अंदर एक हेरेडिटरी चीफ की जगह पे 4-5 चीफ हुआ करते थे, 4-5 पंच हुआ करते थे। सो मतलब वही है कि एक चीफ है, और उस चीफ का जिस अपने पूरे जो जुरिस्डिक्शन के अंदर जितना भी उसका एरिया है, वहां तक उसकी अथॉरिटी रहेगी। फिर इसके अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि जहां भी अथॉरिटी आती है तो अथॉरिटी मतलब होता है सैंक्शन, और सैंक्शन जो होता है स्पेशली सिक्योरिटी एलिमेंट जब होता है, और सिक्योरिटी एलिमेंट तभी यूज किया जा सकता है व्हेन देयर इज सम वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इशू। अदरवाइज अगर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी नहीं होगी तो अब प्रिमिटिव लोग जो हैं दे डू नॉट केयर अबाउट हैविंग वेपन्स। आप वही बात है कि अगर रेगिस्तान में अगर आपको छोड़ दें तो रेगिस्तान में कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, है ना ही प्रॉपर्टी है ना ही वेल्थ है, आप रेत लेके क्या करोगे। सो वही चीज है, सेंट्रलाइजेशन वहीं पे शुरू होता है जहां पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एलिमेंट आता है, और सिक्योरिटी एलिमेंट इट इज अबाउट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। और प्रॉपर्टी एंड वेल्थ होती है तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मीन्स सोशल हायरार्कीज। फिर सोशल हायरार्कीज होगी यानी टास्क स्पेशलाइजेशन है, यानी बहुत लोग जो है अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी ट्रेजरीज के पास जो है रेवेन्यू आ रहा है। अब वो उसी रेवेन्यू को बहुत सारे काम में यूज करते हैं, सिर्फ वॉर एंड एक्सपेडिशंस के लिए नहीं, बल्कि दूसरे काम के लिए, जिसको
इकोनॉमिक्स में, इवन पोलिटिकल साइंस में, इट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक्स. सो रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक्स मीन्स जो रॉयल ट्रेजरी के पास या फिर किसी भी गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है, उस टैक्स को वो फिर अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो गया, इरिगेशन में हो गया, या फिर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी हो गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जितने भी गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उन सब के लिए हो गया. तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड देन मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर. फिर comes the last stage, the states. So states, they are highly stratified and bureaucratically organized. So जिसमें जो हम आज के है, जो हमारा जो स्टेट है, जो जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जिसके कोडिफाइड लॉज है, स्टैंडिंग आर्मीज है, टैक्स सिस्टम है, क्लास डिविजन्स है, एटसेट्रा. देन द रीजन फॉर कल्चरल इवोल्यूशन, जो मेन कंसेप्ट है नियो इवोल्यूशनिज्म का, कि कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ. तो यहाँ पे एलमन सर्विस का जो आइडिया है सोशियो-पॉलिटिकल इवोल्यूशन का, तो उसमें भी द मेन द मेन ड्राइवर, the source that fuel cultural evolution, it is the need for coordination, the need for integration. क्योंकि the thing is simple, when we are becoming socially and politically complex, and उस complexity में we need revenue. Now यहाँ पे ये आइडिया जो है वो बहुत कम बार लोग जो है वो सोचते हैं. और इवन यही आइडिया जहां से हमने चैप्टर शुरू किया था गॉर्डन चाइल्ड में, he took up the idea of historical materialism of Karl Marx, and Karl Marx is revered everywhere just because he he thrown light on this issue that our history is repleted with the instances, the conquest, the expedition, about the the royal danglings, but then we do not know how that revenue came from. जो किंग ने जो है ताजमहल बना दिया, तो वो पैसा कहाँ से आया. फिर ये सब इरिगेशन वर्क हुए. अगर मयूर सिंहासन था, या फिर जो ब्रिटिश थे, दे अंडरटुक दैट मैसिव गॉथिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या उससे पहले मुगल्स या दिल्ली सल्तनत हैं, दे अंडरटुक दैट दैट इस्लामिक इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर. वो सब जो है उसका पैसा कहाँ से आया. तो वो पैसा जो है, इट दैट रेवेन्यू, इट सिग्निफाइज कि सोसाइटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड. हर तरह के लोगों की जरूरत है, तभी जाके सोसाइटी कंप्लीट हो पाएगी. और हर तरह के लोग मींस इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, एंड दोज डाइवर्स ग्रुप मस्ट बी वूवन इनटू दैट कोहेसिव पॉलिटिकल यूनिट. और इस तरह से अगर एक सोसाइटी के अंदर कॉबलर भी है, पेंटर भी है, फार्मर भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, देन जेनेटर भी है, ट्रेडर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और रूलर भी है. जब बॉटम से लेकर टॉप तक सब के सब लोग जो है, इफ दे आर वोवन इनटू एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क, दैट्स व्हेन एनी कल्चर इवॉल्व सोशियो-पॉलिटिकली. और वही आइडिया जो एलमन सर्विस का है. और उसके लिए कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड आइडियोलॉजिकल लेजिटिमाइजेशन, वो सब जरूरी है. तो कोऑर्डिनेशन समझ रहे हैं, जो जेनेटर का काम जेनेटर ही करेगा. और जेनेटर की जगह, मतलब आप डोमेस्टिक हेल्प की बात कर सकते हैं. आप डोमेस्टिक हेल्प अपनी जगह पे सही है, वह उनका भी तो काम है, खाना बनाना है, साफ सफाई है. सो यहाँ पे किंग जो है वो कितना भी पावरफुल हो, वो डोमेस्टिक हेल्प के बिना काम नहीं कर सकता. अब ये भी है कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए वो महीने का 10-20 लाख रुपए भी नहीं दे सकता, कि ऐसा भी कोई महान काम नहीं है. लेकिन उस काम को करवाने के लिए वो उनकी बेइज्जती भी नहीं कर सकता. सो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो जरूरी है. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि हर जगह जो है वो ब्लैक एंड वाइट लाइफ नहीं है, कि इट्स ऑलवेज अबाउट जेनेटर एंड रूलर. इतना बड़ा गैप कहीं भी नहीं होता. लेट्स से दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही, मतलब कह सकते हैं कि प्रेशियस स्टोन्स हैं, उसके अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं. अब बात यही हो रही है कि एक जना है जो है वो ईस्ट में जाना चाहता है, दूसरा वेस्ट में जाना चाहता है, बट उनके लिए उनको रॉयल ट्रेजरी से हेल्प चाहिए. बट अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया.
यही हो सकता है कि दोनों ही ईस्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी 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 जो टेरिटोरी है वो डिसाइड नहीं की, तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो भी जरूरी है। एंड इवन ये समझ लीजिए कि बिना कोऑर्डिनेशन, बिना डिग्निटी के ये डाइवर्स ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। द होल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जिसके तहत आप सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट डिग्निटी। यहाँ पे आप किसी के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे या किसी के फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, किसी के फिजिकल, मॉरल, या किसी भी जो उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी स्टेशन, लाइफ स्टेशन के बेसिस पे, यू कैन नॉट, यू नो, डेरोगेटिव, यू कैन नॉट एंगेज इन डेरोगेटिव रिमार्क्स। आप उसकी, यू कैन नॉट स्ट्रिम दैट ऑफ द डिग्निटी। सो ये बेसिक आइडिया है कोऑर्डिनेशन का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, और वही आइडिया जो है लेटर ऑन कोडिफाइड इनटू लॉ। सो अब केस स्टडीज की बात करते हैं। सो यहाँ पे एलमन सर्विस ने दो एथनोग्राफिक अकाउंट जो है उनकी स्टडी की। सो फर्स्ट ऑफ ट्रोब्रियन आइलैंडर, ये जो स्टडी है, इट वाज अंडरटेकन बाय ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोव्स्की। सो यहाँ पे जो कूलर रिंग के बारे में है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी, उसकी स्टडी की गई कि किस तरह से यम्स हैं, जो स्टोन्स हैं, और कूलर रिंग जो है, बोथ ऑफ देम दे सर्व एज symbolic and tools of economic centralization। और सिमिलरली सेम स्टडी जो है वो माया सिविलाइजेशन को लेकर है, कि किस तरह से वो सोसाइटी जो है, इट इवॉल्व फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी इनटू कॉम्प्लेक्स सिटी स्टेट। और जब कॉम्प्लेक्सिटी आई, देन उसमें जितने भी पोलिटिकल ऑर्गन्स जो है वो भी आए। फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है, इट इज अबाउट ओवर स्कीमेटाइजेशन या ओवर जनरलाइजेशन, की जो स्टेजेस जो है फ्रॉम बैंड टू ट्राइब टू chiefdom टू स्टेट, दे आर टू रिजिड, टू हायरार्किकल और टू मोनोटोनस। कि हर कोई जो सोसाइटी जो है वो उस रिजिड क्राइटेरिया में, उस फोर फोल्ड स्टेजेस में फिट नहीं होती। फिर देन द यूरोसेंट्रिक बायस इज देयर, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो लेस्ली वाइट की बात करें, जूलियन स्टुअर्ट की बात करें, या गॉर्डन चाइल्ड की, सब के सब जो है, इवन इफ दे दे बिगेन विद दिस डिस्क्लेमर। जब नियो एवोल्यूशनिज्म लॉन्च हुआ, तभी उस डिस्क्लेमर में, जिस फिल्म के पहले जो डिस्क्लेमर आता है कि हम लोग जो है यूरोसेंट्रिक बायस नहीं रखेंगे, बट अल्टीमेटली सबकी जो स्टेजेस हैं, कल्चरल इवोल्यूशन की जो स्टेजेस हैं, दे एंड अप एट आइदर द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या वो सोसाइटी जो एनर्जी अच्छी तरह से यूज करती है, वो भी यूरोपियन सोसाइटी है। फिर या फिर वो सोसाइटी जो जो सेंट्रलाइज है, या जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गन्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, तो वो भी यूरोपियन सिविलाइजेशन ही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो उनकी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इट एंड्स अप दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन। एंड फाइनली सबके अंदर ये criticism कॉमन है, that they neglect symbolism, that they, in their desire to integrate the scientific principle, they forgot to integrate this particular thing, कि हर जगह पे जो सोसाइटी है, they have their own symbolic universe, और ये symbolic universe अगर इसको address नहीं किया गया, and if you had not thought about it, if you had not tried to inculcate that symbolic framework, then your idea about cultural evolution, it is half baked। So ये अल्टीमेटली यहाँ तक इतना है। फिर अगर इसमें कोई चीज़ है, डाउट है, बार बार बोलता हूँ पर कोई कमेंट करता नहीं है, तो फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर दीजिए। इसी पीडीएफ में आगे आपके पीवाईक्यू इनसाइट्स भी हैं यूपीएससी के, तो उनको भी एक बार देख लीजिए। तो दिस इज इट, थैंक यू।